लोकतंत्र भारत के मूल में है, हमारा आधार है। हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं ने दुनिया को राह दिखाने का काम किया है। भारत के लोकतंत्र की गहराई और इसमें हमारी आस्था को दुनिया से रूबरू कराने का काम करता है संसद टीवी। संसद टीवी 3 साल का हो चुका है और इस खास पड़ाव को लेकर संसद टीवी @3 कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से राष्ट्रीय विकास पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया। Which country can claim such transparent, accountable governance that is driven by technology? In a country like Bharat, more than 100 million farmers get direct digital transactions, direct amount in their banks thrice a year. I don't see much in the government doing it. I'm proud that as farmer's son, that a farmer receives it. He is well equipped. That change we have to show to the world. We have to be a little bold in media. We have to address issues, not with individuals on the radar. भारतीय टेलीविजन ने कई पड़ाव देखे हैं, कई दौर देखे हैं, बदलाव का भी गवाह बना है। 15 सितंबर 2021 भारतीय टेलीविजन के इतिहास के लिहाज से एक अहम तारीख है। इस तारीख को लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी मिलकर एक हो गए थे। दोनों ही चैनलों ने भारतीय संसदीय परंपराओं से देश दुनिया को वाकिफ कराया है। संसदीय कार्यशैली की बारीकियों को आपको करीब से देखने, समझने और परखने का मौका दिया। India proudly and rightly is mother of democracy, the largest functional democracy on the planet, and the only democracy in the world that is constitutionally structured at all levels: the village, the municipality, the state, and the center. No other country has that kind of a system as we have. And therefore, media assumes great relevance. इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत के लोकतंत्र के अलग अलग पहलुओं पर अपने विचार रखे। उन्होंने बताया कि कैसे भारत का लोकतंत्र अपने आप में दुनिया से न सिर्फ अलग है, बल्कि सही मायनों में लोकतंत्र ही भारत का मूल है। Look at the appreciation the world holds for us in digitization. But are we, as a media house, serious about it? Are we proud of our accomplishments? I would say we need to revisit our thoughts. Development is not the agenda of our news. Development is not on the radar. Can you ever imagine more than 500 million people getting banking inclusion, where they had no audacity or hope to enter into a bank branch? And that doesn't stop there. They are beneficiaries, giving the nation a rare status of being in the world 50% consumer of direct transfers. That is our Bharat. The world has to know about it. The world has to know about it from authentic platform. Sunset TV is one. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि आज बदलाव का दौर है और इस वक्त में जो भी सकारात्मक हो रहा है उसको लोगों तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। Green hydrogen mission. Sunset TV carried a program and I got inputs from several countries, from my friends. They could never imagine this is happening in India. That by 2030 you will have 8 lakh crore investment and 6 lakh jobs. Unimaginable. People are not aware.
of the opportunity basket. Our young boys and girls are in queue, in coaching centers, in silos, in search of only government jobs. Think for yourself. It was not for government jobs that International Monetary Fund said India is a global destination of investment and opportunity. Opportunity lies elsewhere. And that is why I compliment the CEO for having brought on the screen ISRO chairman. You cannot imagine what kind of opportunities are there. The world needs to know, our own people need to know. And we need to take pride in it. उपराष्ट्रपति ने संसद टीवी के कार्यक्रमों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि देश में हो रहे सही बदलावों और सरकार की लोकहित की नीतियों को लोगों तक पहुंचाने का काम संसद टीवी ने किया है। The price we are paying in this country for lack of commitment to economic nationalism. Imagine the avoidable imports we are having. Imports of the kind like diyas, kites, furniture, furnishings, whatnot, even clothes. We are doing three big damages. One, our precious foreign exchange is going out. That is avoidable. We are snatching work from our people. They could make those diyas, those candles, that furniture, those trousers, those shirts, jackets. So we save foreign exchange. We are blunting entrepreneurship. There should be a healthy debate. A debate will be eye-opener if you will be able to tell the people at large that because of these avoidable imports, we have lost, I'm just giving empirical figure, around 100 billion US dollars every year. In the process, we also empower countries that may not be well inclined towards us. Second, how can this country be so genius with everyone being involved in activity, export raw materials? Have a debate. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि संसद टीवी लोगों को संसद की झलक दिखाता है। यह संसद से सूचना प्रसारित करने का एक मंच है। उन्होंने कहा कि मीडिया सही मायने में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। सबसे अधिक आबादी वाला लोकतंत्र, सबसे पुराना लोकतंत्र, लोकतंत्र की जननी, सबसे जीवंत लोकतंत्र चाहता है कि मीडिया विकास के साथ साथ चले और लोगों तक देश की सही तस्वीर पहुंचाए। साथ ही उन्होंने कहा कि मीडिया का काम लोगों को सही दिशा देना भी है। When I look around, the face being changed, rural talent showing explosively in various positions, including in government assignments and civil services. We have someone in the US floating a narrative. IITs and IIMs, only the upper class is admitted. I have no doubt in using an expression, they are in fool's paradise. They have forgotten India has changed. The privileged pedigree in this country is not there now. Everyone is accountable to rule of law. The big change is for the nation. The big change is for ordinary people. The big change is for our youth. Because privileged pedigree means you are above law. You are immune from law. You may do whatever culpable act. It will not be labeled as culpable. We are out of that. उपराष्ट्रपति ने कहा कि जो असल भारत है वो गांव में बसता है और आज भारत के गांवों की प्रतिभा के जरिए देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो रहा है। Media is rightly the fourth pillar of democracy. The most populous democracy, the oldest democracy, the mother of democracy, the most vibrant democracy wants media to be in pace with the development.
we have become chronic critics. We have developed indigestible mechanism that yes, this is being done in this regime, therefore it has to be criticized. Criticism and criticism, nothing but criticism as a part of policy is antithetical to democratic values. There are issues in the country, I am alive to them. The institutions in the country have to operate within their area. The judiciary, the executive, the legislature. I quite often say, we in Lok Sabha or Rajya Sabha cannot script judgment of the Supreme Court. It is their job. Similarly, no agency other than Parliament can script laws. That is our domain. Executive governance is job of the government. Executive governance is exclusive to the government because the government is accountable. The government first is accountable to legislature. If the government trips in performing executive duties, there is sense of accountability. And then after 5 years or earlier, the people of the country also take a call. How have we performed in your executive domain? Now, if that executive power is controlled by someone else, the very thought of it is earth-shaking to me. How can executive power of the executive be taken over by someone? उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश को आगे ले जाने में सभी की अपनी भूमिका है और कोई भी किसी दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करता है। नमस्कार, मैं हूं संसद टीवी, गौरवशाली भारत का संसदीय चैनल। मैं पहले से चले आ रहे लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी के विलय से इस स्वरूप में आया। 15 सितंबर 2021 के ऐतिहासिक दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से मेरा शुभारंभ हुआ। बीते 3 वर्षों के कालखंड में मैंने कई ऐतिहासिक पलों को आपके सामने प्रस्तुत किया है। नए संसद भवन का निर्माण, संविधान सदन से संसद के नए भवन की यात्रा, प्रेरणा स्थल का उद्घाटन और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने जैसे महत्वपूर्ण क्षण मैंने अपनी आंखों से देखे और आप तक पहुंचाए हैं। नई सरकार का शपथ ग्रहण हो, 2024 में 18वीं लोकसभा का गठन हो या फिर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण, मेरा ध्येय है कि संसद की कार्यवाही और लोकतंत्र से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी हर नागरिक तक पहुंचे। इस बार के आम चुनावों में मेरी अहम भूमिका रही। निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर मैंने चुनावी कवरेज में यूनिक पोलिंग स्टेशनों की झलकियां प्रस्तुत की ताकि आपको दिखा सकूं कि लोकतंत्र के इस पर्व पर भारत को कितना गर्व है। मैंने न सिर्फ भारत की यादगार उपलब्धियों को दिखाया है, बल्कि संविधान दिवस, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का विदाई समारोह और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लोकतंत्र के मंदिर में पहले संबोधन जैसे ऐतिहासिक क्षणों को भी आपके सामने प्रस्तुत किया है। मैंने भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन, यशोभूमि में P20 सम्मेलन और रामलला मंदिर के भव्य उद्घाटन को भी आपके सामने प्रस्तुत किया है। मैंने देश के उपराष्ट्रपति के साथ हनुमानगढ़ी, कुबेर टीला और रामलला के दर्शन किए, ऐतिहासिक राम मंदिर परिसर का अवलोकन किया और साथ ही सरयू आरती में भी शामिल हुआ। मैं केवल संसद सत्रों की लाइव कवरेज तक सीमित नहीं हूं, बल्कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के प्रमुख कार्यक्रमों की कवरेज भी करता हूं। अब मेरा विस्तार हुआ है। आप मुझे STV1 और STV2 के रूप में देख सकते हैं। STV1 पर हिंदी के कार्यक्रम आते हैं, जबकि STV2 पर
अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं के कार्यक्रमों की कड़ी है। मैं HD और SD दोनों फॉर्मेट में उपलब्ध हूँ। डिजिटल क्रांति के युग में तो मैं आपके पॉकेट में भी हूँ। मुझे गर्व है कि मैंने न केवल देश में बल्कि वैश्विक मंच पर भी अपनी मजबूत पहचान बनाई है। अन्य देशों के संसदीय चैनलों की बात करूं तो YouTube पर यूके पार्लियामेंट चैनल के 3,83,000 सब्सक्राइबर हैं। ABC न्यूज ऑस्ट्रेलिया के 2.1 मिलियन और सी स्पैन के 1.46 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, जबकि मेरे पास 8 मिलियन यानी 80 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। इतना ही नहीं, हमने YouTube पर भारतीय भाषाओं में संसद की कार्यवाही का प्रसारण भी शुरू किया है, ताकि दर्शक अपनी भाषा में संसद की कार्यवाही का आनंद ले सकें। इसके अलावा Instagram, X और Facebook पर हमारी तेजी से बढ़ती फॉलोइंग दुनिया भर में संसद टीवी की लोकप्रियता को दर्शाती है। मेरी पहचान सिर्फ संसद की कार्यवाही की लाइव कवरेज तक सीमित नहीं है। मेरे गुलदस्ते में कई रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम मौजूद हैं। नित नए कार्यक्रमों के साथ घर घर तक पहुंच रहा हूं, चाहे मुद्दा कानून से जुड़ा हो या मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का हो, महिलाओं का मंच हो या युवाओं की आवाज हो, खेती बागवानी की बात हो या स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी, या फिर प्रकृति और संस्कृति पर आधारित कार्यक्रम। संवाद हो, शख्सियत से मुलाकात हो या संसदीय क्षेत्र की बात, मेरे हर शो ने दर्शकों को एक नई दृष्टि दी है। और अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से भी आप हर महत्वपूर्ण विषय पर हमारा विचार और विश्लेषण सुन सकते हैं। मेरी एडिटोरियल, कैमरा, ग्राफिक्स, एडिटिंग, प्रोडक्शन, सोशल मीडिया और टेक्निकल टीम की मेहनत से मैं हर रोज नए और दिलचस्प कार्यक्रम तैयार करता हूं। इस सफर को और भी शानदार बनाने के लिए मैंने प्रसार भारती, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और अन्य संस्थानों के साथ समझौते भी किए हैं। अपने उद्देश्यों को पूरा करते हुए मैं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संसदीय चैनल होने का दायित्व निभा रहा हूं। भारत की संसदीय लोकतंत्र की महानता को पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आइए मेरे साथ जुड़िए और लोकतंत्र की इस अद्भुत यात्रा को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाइए, क्योंकि हमारा ध्येय वाक्य है राष्ट्र मंत्र लोकतंत्र। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद टेलीविजन के स्थापना दिवस पर संसद भवन परिसर में आयोजित संसद टीवी कॉन्क्लेव में समापन समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सूचना के प्रामाणिक स्रोत के रूप में संसद टीवी की छाप देश और विदेश में विभिन्न हितधारकों को लाभान्वित कर रही है। हम दोनों सदनों के इन चैनलों को, जो अलग अलग स्वरूप में लोकसभा के माननीय अध्यक्ष जी ने इसकी शुरुआत की थी, राज्यसभा में इसकी शुरुआत हुई, अब संसद टीवी के रूप में एकीकृत करने का जो कार्य योजना बनाए, उसको 3 वर्ष पूर्ण हुए हैं। और इन 3 वर्ष के अंदर बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर जहाँ संचार के साधनों में परिवर्तन हुआ है, जहाँ पर टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हुआ है, और टेक्नोलॉजी परिवर्तन के साथ साथ त्वरित गति से किस तरीके से हम जनता की बात संचार या अन्य
माध्यमों से ठीक से पहुंचा सकते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन, व्यापक परिवर्तन हुआ है। इस परिवर्तन के समय के अनुसार संसद टीवी के अंदर भी नया परिवर्तन हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का भी उपयोग किया गया है, टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया गया है, और किस तरीके से इस संसद टीवी बनाने का जो लक्ष्य था, जो सपना था, उसको पूरा करने के लिए महामहिम उपराष्ट्रपति जी माननीय जगदीप धनखड़ साहब का एक लगातार अथक प्रयास है, और निरंतर वो प्रयास करते रहते हैं कि इस टीवी चैनल को एक नए स्वरूप में जनता की अपेक्षा और आकांक्षाओं के अनुरूप हम देश में इसकी सेवाएं दे सकते हैं। इस खास मौके पर संसद टीवी की भूमिका को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संसद टीवी के माध्यम से लोग संसद और लोकतांत्रिक संस्थानों के कामकाज, नीतियों और योजनाओं के बारे में जागरूक हो रहे हैं। साथ ही संसद टीवी के जरिए भारतीय संस्कृति, इतिहास और वर्तमान से जुड़े सरोकार जन जन तक पहुंच रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने संसद टीवी की सराहना की। संसद टीवी अन्य टीवी चैनल या सूचना प्रसारण के अन्य तंत्र से एक अलग विकसित तंत्र किया गया है, जिसका मूल काम संसद के दोनों सदनों की लाइव संसद में दिखाना और उसके बाद समय समय पर देश के लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में अधिकतम लोगों की भागीदारी हो, देश में लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास, भरोसा बढ़ा है, और हम लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में किस तरीके से जन भागीदारी बढ़ा सकते हैं। इसमें संसद टीवी का एक महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि संसद टीवी के अंदर जहां हमारे लोकतंत्र की विरासत, हमारी प्राचीनतर लोकतंत्र की पद्धतियां, और वहीं आज़ादी के बाद लोकतंत्र के अंदर जो हुए परिवर्तन, उसको दिखाने का काम करते हैं। उसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय जगत के अंदर जो लोकतंत्र के अंदर नए परिवर्तन होते हैं, उस परिवर्तन को और वहाँ की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को भी हम टीवी चैनल के माध्यम से प्रयास करते हैं। और इसीलिए संसद टीवी को बनाने का एक मकसद ये था कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र में भारत के लोकतंत्र की क्या भूमिका है। और आज हम कह सकते हैं कि भारत का लोकतंत्र दुनिया के लोकतंत्र के लिए मार्गदर्शिका की भूमिका निभाता है। भारत युवाओं का देश है, इस लिहाज से संसद टीवी की भूमिका का जिक्र करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि देश के युवाओं को संसद से जोड़ने का काम संसद टीवी ने किया है। हमने प्राचीनतर लोकतंत्र है, लोकतंत्र की पद्धतियां, प्रक्रियाओं, परंपराओं, प्रपाटियों को जहाँ दर्शाने का प्रयास किया है, वहाँ ये बताने का प्रयास किया है कि भारत का लोकतंत्र की विरासत बहुत पुरानी, प्राचीनतर लोकतंत्र की पद्धतियां हैं, और इसीलिए हमने लोकतंत्र के इतिहास, लोकतंत्र की परंपराओं को भी संसद के माध्यम से आम जन तक पहुँचाने का प्रयास किया है। और इसी के साथ भारत की आज़ादी, आज़ादी की लड़ाई, आज़ादी के संघर्ष, आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी, उनके जीवन दर्शन, हमारा इतिहास, हमारे इतिहास की परंपराएं, ये सब संसद टीवी के माध्यम से समाज तक पहुंचाने का प्रयास किया है।
और हम ये कह सकते हैं कि विरासत को हम ठीक से बताने का काम इस संसद टीवी के माध्यम से किया है। और जब आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों के जीवन दर्शन को टीवी चैनल पे बताया जाता है तो आने वाली पीढ़ी को भी देश और राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव और कुछ काम करने की प्रेरणा मिलती है। और इसीलिए इस मीडिया, संसद मीडिया की एक बहुत सकारात्मक भूमिका है, क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर जब प्रतिस्पर्धा होती है, समाचारों को जल्दी दिखाने की प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, उस समय आवश्यकता है कि विश्वसनीयता, प्रामाणिकता, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे अन्य मीडिया के साधन हो, हर साधन में आज बड़ी गंभीर चिंता का विषय है कि उसकी प्रामाणिकता और उसकी विश्वसनीयता। संसद के अंदर जहाँ पर उसकी प्रामाणिकता भी हमने साबित की है और विशिष्टता भी साबित की है, और उसके साथ आने वाली पीढ़ी को भविष्य के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पद्धति को जोड़ने का तो काम किया सही, लेकिन कई माननीय विद्यार्थी, नौजवान छात्र अपनी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वो संसद टीवी के प्रोग्राम को देखते हैं, क्योंकि संसद टीवी एक ऐसा टीवी चैनल है जिसके पास बहुत बड़ी विरासत की सामग्री है। हमने कई एजेंसियों से एमयू भी किया है, वहाँ की कुछ सामग्रियों को यहाँ पर प्रदर्शित करने की कार्य योजना भी बनाई है, और उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमने कई संस्थाओं से एमयू किया है, और वहाँ की संस्थाओं, वहाँ की संसदीय प्रक्रियाओं को भी टीवी चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। 3 वर्ष पूर्व लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी के एकीकरण से स्थापित संसद टीवी हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं और संस्कृति के उच्च मूल्यों को प्रदर्शित करने का एक सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। लोकसभा और राज्यसभा चैनल ने 1 दशक से ज्यादा तक अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। अब आपके लिए ये जिम्मेदारी संसद टीवी निभा रहा है, नए तेवर, नए कलेवर के साथ, नए विजन और भरोसे के साथ। आपने जो जिम्मेदारी हमें दी है, हम उस पर खरा उतरेंगे।